इंटरप्रेटिंग करना, किस तरीके से हमको क्रिएटिविटी करना, वो सब चीजें के स्टेप आपको इस वर्कशॉप के माध्यम से मिलेगा। अब उसके बाद अगर आप सोचेंगे Giving me a chance to share my experience in this workshop. So hey, I'm Masmi Pachme from grade 7th Meridian School and a student of Avnish Handwriting and Calligraphy classes. So basically, I have been the 20 days calligraphy session, which includes various activities like candle art, circle calligraphy, sticky notes calligraphy, and many much. And I have some of those to show you right now. So here, I have done the highlighter calligraphy, and you can see what things are there in calligraphy. Candle art, and this is circle calligraphy. This is sticky notes art. This is also and this is sketch pen calligraphy. It's really very simple. The thing is in our mind only, but this session will help you to enhance it. And calligraphy has really helped me a lot, but still there is a problem. Most of us do not know the meaning of calligraphy. The word calligraphy comes from the Greek word kallos, meaning beautiful, and graphein, meaning to write, literally beautiful handwriting. So calligraphy has many benefits in various ways. Like we can use it in our school assignments and projects. We can write on envelopes, we can write on letters, and who would not love to have a beautifully calligraphed letter? It would create a memory for the person you are giving it to. You can also give birthday cards and greeting cards. So besides calligraphy, as sir said, I have also done the print handwriting course, which also helped me a lot and helped me and my sister to come on first position in my school's handwriting competition. A good handwriting also plays a positive impression on teachers or any of the elders you know. And it also develops your personality, it defines your personality, your mindset. So it is really very important to improve your handwriting. Having a bad handwriting is not a problem, but you have to improve it and prove yourself that you can also do what we all have done. So I want that you all should enjoy this session and play all your best as you can. All the best. Thank you. First of all, I want to thank Amrish sir to give me this beautiful opportunity again to speak here. Hello everyone, myself Tejal Patil. I am in 12th standard and today I am present here to express my experience with you. So, अभी तो अमरीश सर और अश्विन ने दोनों ने बोला कि व्हाट इज कैलीग्राफी. तो दो जनों ने बोला कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज़ करते हैं या फिर और अदर थिंग्स जो हम लिखते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. जब मैंने सीखा था तो सर ने भी मुझसे पूछा था कि व्हाट इज कैलीग्राफी. तुम कैलीग्राफी कर रही हो तो तुम्हें इसका मीनिंग पता है क्या होता है. तो आई वॉज लाइक कि मेरी तरफ से मेरा था कि इट वॉज एन अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग मेरी तरफ से. पर जब मैंने इसे सीखा तो मेरे हिसाब से मेरा उसका अलग मीनिंग बन गया. मेरे लिए वो ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ कैलीग्राफी इज अ ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग. जैसे कि इसने कहा अश्विन ने कि ग्रीक वर्ड लिया गया है उन्होंने. तो ये कैलीग्राफी इंडिया से नहीं आई है, बाहर से ही आई है. बट जब हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं ना उसमें तो आगे बहुत फायदा होता है. सो और एक कहतं आहे की जसं जसं आपल्याला अधिक माहिती भेटते तसं तसं आपण तेवढं विकसित होतो. उसका मतलब होता है कि एज यू नो मोर यू ग्रो मोर. तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है. आप अगर इसे एक बार सीख लोगे ना तो आप कहीं भी जाओ. आप इसे ऐसा नहीं कि बस आर्ट्स में ही. मैंने आर्ट्स लिया है, आई एम आर्ट्स स्टूडेंट एंड इन बिरला कॉलेज आई एम मोस्ट रिस्पेक्टिव पर्सन. मतलब मैं रिस्पेक्टिव पर्सन हूँ इस वजह से, क्योंकि अभी हमें लगता है कि हम स्कूल में तो स्कूल में फंक्शन होता है, प्रोजेक्ट होता है. पर जब हम कॉलेज लाइफ में जाओगे, आप अभी 7, 6, 8, 9 के बच्चे हो, तो जब आप ग्रो करोगे 12th, 11th, 12th में जाओगे तो आपको लगेगा कि जितना स्कूल में एक्टिविटीज नहीं होता ना उससे डबल ट्रिपल हम लोगों का कॉलेज में एक्टिविटीज होता है. हर दिन एक नया फंक्शन होता है, हर दिन कुछ ना कुछ होता है. ELA इट्स फुल फॉर्म इज इंग्लिश लिटरेचरी एसोसिएशन. ये बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है जिसमें PhD किए होते हैं सर या मैम इंग्लिश में, वो आते हैं, राइटर्स आते हैं, पोएट्स आते हैं. और जब वो हम लोग लिखते हैं वो जो इम्प्रूवमेंट वो जो उन्हें ये जो वर्कशॉप है अवनीश सर का जो हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी का, ये आपको आगे जाके स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं
उसमें आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी होती है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। कैलीग्राफी ऐसा एक ये है कि जहाँ पे आप जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, ये एक प्रोफेशन वैसे कैलीग्राफी में जो करियर भी कर सकते हैं आप लोग, और उसमें आप अच्छा ग्रो भी कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये हैंड राइटिंग क्लास है, कैलीग्राफी क्लास है, यहाँ पे ही छोड़ दो, वर्कशॉप हुआ तो वहाँ पे ही छोड़ दो। इसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। कंटिन्यू क्लासेस होता है सर का, उसका कोई प्रोग्राम होता है जो 1 मंथ 2 मंथ, जैसे वो आप अटेंड करो, आपके मम्मी पापा को बोलो, इसमें आपका करियर भी हो सकता है। और अवनीश सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं अपने को हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी के क्लासेस। लास्ट 1 ईयर से मैं उनके साथ एक कोऑपरेटिव नेचर, सेम चीज़ है। अपने सपना मैडम है जो अच्छी तरह से सब बच्चे लोगों का क्लासेस वगैरह करवा के लेते हैं। और अच्छा करो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। Now workshop gone well. I am Shor Singh from class 7 from Narayana Techno School. This was my first experience in this workshop and it was my first and best experience. I think that we can use this in many things like art, etc. etc. And I will also like to thank Abhi sir because he gave me chance to come here and speak. Thank you. ओके